प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स आइडियल एंटरप्राइजेस आर गिवन बिलो। आपको मेसर्स आइडियल का बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, and on this basis they have told you to calculate certain ratios. कौन-कौन से ratios है? Current ratio, proprietary ratio, inventory turnover ratio. When they say about inventory, they are talking on stock. So it is stock turnover ratio. Inventory turnover ratio बोलो कि stock turnover ratio बोलो, it is one and the same. Average collection period and receivable turnover ratio. Receivables means they are talking about डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। हम जब सोल्यूशन करेंगे तब हम ये दोनों का जो कैलकुलेशन है वो एक साथ करेंगे। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। सम नोट इज गिवन, अज्यूम ऑल द सेल्स आर ऑन अ क्रेडिट बेसिस, के जितने भी सेल्स है ये सारा क्रेडिट बेसिस पर है। कन्वर्ट टू वर्टिकल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पर वर्टिकल स्टेटमेंट में कन्वर्जन नहीं करना है, डायरेक्टली यू हैव टू स्टार्ट विथ कैलकुलेटिंग द रेशियो। One more thing I am giving you as a information which is not given over here. Assume that a year has a 360 days. अब वो क्यों लिखवा रही हूँ? वो जब हम ये 5th and 6th रेशियो कैलकुलेट करेंगे तब वो आपको बताऊंगी मैं। But one more point you will be adding over here. Assume year has 360 days. Let's start with very first ratio, that is current ratio. Current ratio का मतलब होता है current assets divide by current liabilities। और बताइए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है 2:1। मतलब आपके पास 2 रुपये का जब करंट असेट्स होंगे तब आप उसके सामने 1 रुपये की लायबिलिटी को पे कर पाओगे। सो इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है? 2:1 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। Now you have a balance sheet over here, और आपको कन्वर्ट किए बिना यहाँ से ही पता करना है कि कौन कौन से करंट एसेट्स है और कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज है। Now let me know which all are the current assets and current liabilities. Let's start with current assets. Fixed assets? नहीं. Okay. Trade investment? No. Stock? Yes. Debtors? Yes. Bills receivable? Yes. Cash and bank balance? Yes. करंट एसेट्स मिल गए। अब तब तक उसमें कौन कौन से करंट एसेट्स मिले वो यहाँ पर लिख लेते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन द शॉर्ट फॉर्म्स। स्टॉक प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस। नाउ करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर्स, are the debentures your current liability? No. Sundry creditors? Yes. Other current liabilities? Yes. Yes. So दो ही आया, sundry creditors and other current liabilities. Other current liabilities. Now you have to just do the addition of all. पहले न्यूमरेटर में लिख लेते हैं। Stock is 1,44,000. Debtors are 56,000. Bills receivable 32,000. And you have cash and bank balance of 8,000. Divide by sundry creditors 70,000 and other current liabilities 50,000. First you will calculate the numerator and tell me the amount. First calculate numerator. 2,40,000. Denominator तो बहुत easy हो गया, 70,000 plus 50 is 1,20,000. कितना मिला? डिवाइड करने के बाद 2:1. गुड. तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो भी 2:1 ही है. So how you will write 2:1. So you got a current ratio of 2:1. Next now. Proprietary ratio. Formula is proprietary fund divided by total assets into 100. Now when I say proprietary fund का मतलब होता है
इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर्स माइनस ऑल योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस. अब यहाँ पर तो मिसलेनियस एक्सपेंस कुछ नहीं दिए हैं, but do we have equity share capital, preference share capital and reserves? Yes, we do have this. We have equity share capital, preference share capital as well as we have a reserves. तो जब हम proprietary fund calculate करेंगे, you will be adding all these three. क्योंकि ये equity shareholder भी proprietor है, preference shareholder भी क्या है, proprietor है. और जब हम और हमने जो रिजर्व्स अलग से करके रखे हैं वो भी एक्चुअल में हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए, बट एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व मैंने उसको अलग से रखा था. इसके लिए वो अमाउंट भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल plus reserves and surplus. Divide by total assets. Total of assets कितना है हमारे पास? 10 lakh. You don't need to do it. Just see कि total assets कितने हैं. Total assets का मतलब होता है all your fixed assets plus current assets. ठीक है? यहाँ पर अगर miscellaneous expense दिया होता तो हम माइनस करते. Total assets means your fixed assets plus current assets. तो इसका टोटल ऑलरेडी करके दे दिया. इट इज 10 लाख रुपीज. सो डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100. न्यूमरेटर 6 लाख 6,40. ओके. डिवाइड बाय 10 लाख into 100. Class, one thing you have to remember, you cannot directly jump from this to the answer. आपको numerator denominator solve करने के बाद ही आंसर होगा, because the step 2 has a mark, so आपको step by sum solve करना है. This will be 64%. Since it is in the form of 100, 100 का मतलब होता है this is a percentage form. तो याद रखना ये रेशियो फॉर्म में आंसर आया, इसका आंसर आया परसेंटेज फॉर्म. थर्ड वन इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. एंड आई टोल्ड यू इन्वेंट्री का मतलब होता है यहाँ पे स्टॉक. वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक. वन मोर थिंग आई टोल्ड यू, जिसके ऊपर इन्वेंट्री होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. सो योर फॉर्मूला विल बी COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. व्हाई एवरेज? बिकॉज स्टॉक दोनों होते हैं, ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है. सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. नाउ हाउ टू कैलकुलेट COGS? COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हाउ टू कैलकुलेट दिस COGS? सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Sales minus closing stock will give you COGS. And what is the another form to calculate even COGS? Opening at purchase less closing. हाँ, opening at purchases. Even if you have a carriage inward, it will be added and then you will be subtracting closing stock. मुझे उतना करके बताओ पहले कितना आंसर है. साथ में करते हैं बच्चों. COGS is equal to opening stock plus purchases plus यहाँ पर हमारे पास wages है तो we will be adding up the wages and even here we have a manufacturing expense so that also will be added. Minus it will be closing stock. Now what is opening stock? 96,000. Purchases 3,20,000. Wages 4 lakh. Manufacturing expense 2,40,000. And closing stock is 1,44,000. कितना आया? 8,12,000.
Recheck once again. Recheck the total. 96,000 plus 32,000, 3,000, 3,20,000 plus wages of 4 lakh plus your manufacturing expenses 2 lakh 40. 9 lakh 12,000. That is what I told you. Recheck it once again. 9 lakh 12,000. Fine. Now opening plus closing divide by 2 करना है to get the average stock. Let's do the average stock का part. Average stock is equal to opening stock कितना है 96,000. Closing stock is 1,44,000. Divide by 2. कितना है न्यूमरेटर 1,20,000. नहीं 1,44,000 तो इधर ही है 2,40,000. 2,40,000 divide by 2 will give you 1,20,000. सो हमने इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व कर दिया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव रिटन इट इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. नाउ जो ये दोनों आया आपका आंसर, उसको फॉर्मूला में अभी प्लेस कर देंगे. क्लास इज इट ओके इफ आई इरेज दिस? समझ आ गया ना अभी एवरेज स्टॉक का मतलब? सो COGS कितना मिला 9,12,000 डिवाइड बाय यू गॉट 1,20,000 का एवरेज स्टॉक. 7.6. All your coverage ratios and turnover ratios are expressed in times. So 7.6 times. Clear? You have to remember this, हाँ? कवरेज रेशियो आया, टर्नओवर रेशियो आया तो याद करके उधर टाइम्स आया. सी अब तक हमने 3 कैलकुलेशन किया, तीनों में अलग अलग आया. रेशियो फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स. Now moving ahead. Next is capital gearing ratio. So while explaining the theory, I told you capital gearing ratio किसके साथ डील करता है? Preference shares and debentures, and denominator में equity and its reserves. Now ये वाले क्वेश्चन में we have 10% of the preference share and 8% of the debentures amounting to, let's check the amount. preference share capital कितने का है 80,000 and debentures कितने का है 2,40,000. so 80,000 plus 2,40,000 divide by equity share capital plus general reserve. Equity share capital is of 3,20,000, general reserve is of 2,40,000. This is equal to how much? First solve and give me the answer of numerator. 3,20,000 upon 5,60,000. 0.5. So capital gearing ratio is 0.57. See class, sum is easy. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको कौन कौन से फिगर्स को बैलेंस शीट से और P&L से लेके यहाँ पर प्लेस करना है वो पता होना चाहिए. Next one, as I told you that we are going to do the two things together. 5th and 6th we are going to do together. Average collection period, इसका मतलब है हम डेटर्स के पास से कितना टाइम में
पैसा वापस ले रहे हैं, कस्टमर्स को हम कितना क्रेडिट ड्यूरेशन दे रहे हैं. फॉर्मूला फॉर द सेम इज नंबर ऑफ डेज इन द ईयर डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया था कि अज्यूम दैट इट हैज अ 360 डेज. अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो यू विल राइट डाउन 365 डिवाइड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. तो समझ में आया ये 360 या 365 क्या है, ईयर के डेज है. क्लियर? सो अगर कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में देन यू विल टेक 365 डेज एंड डू द कैलकुलेशन. Now, 360 days divide by debtors turnover ratio. बट हमारे पास तो debtors turnover ratio है ही नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. So that is why हम पहले ये debtors turnover ratio कैलकुलेट करेंगे. When I say debtors turnover ratio, it is receivables turnover ratio जो आपको क्वेश्चन में दिया है. See, receivable turnover ratio. तो receivable का मतलब होता है debtors turnover ratio. क्लियर? इसके लिए मैंने आपको बोला कि 5th और 6th हम साथ में करने वाले हैं. So I am just writing it down over here for your reference that it is also known as receivables. तो receivables जब word आया तब bills receivable भी add होगा और debtors का amount भी add होगा. Now I told you one thing, जिसके ऊपर turnover वो हमेशा denominator में. So what will be the formula? And debtors कब arise होते हैं? Because of credit sale. So credit sale divide by debtors plus bills receivable. यहाँ पर एवरेज डेटर्स की बात कर रहे हैं कि आपको ओपनिंग डेटर्स क्लोजिंग डेटर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, सिर्फ एक डेटर का अमाउंट दिया है तो वही डेटर्स का अमाउंट लिखना है. सिंस इट इज रिसीवेबल्स, बिल रिसीवेबल विल आल्सो बी इंक्लूडेड क्योंकि हम बिल्स किसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, कस्टमर्स के ऊपर. सो इवन दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड ओवर हियर. लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट क्रेडिट सेल्स. तो अभी एक नोट याद रखना, all assume that all the sales are on credit basis. मतलब ये जो अमाउंट दिया है वो आपका क्रेडिट सेल का ही अमाउंट है which is 15,84,000. 15,84,000 divide by average debtors plus bills receivable. As I told you, we don't have a average debtors. We normally have only the debtors and bills receivable. That is 56,000 plus 32,000. 56,000 plus 32,000 plus how much? Tell me the amount of denominator first. 88,000. 15,84,000 divide by 88,000. This will be equal to 18. 18 times, right? तो कितना गुना डेटर टर्नओवर रेशियो है? 18 टाइम्स है. अब तक हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है, यहाँ पर ये फॉर्मूला में प्लेस करना बाकी है. नाउ लेट्स प्लेस दिस इन द फॉर्मूला. डोंट हैव अ स्पेस ना, मैं यहीं पर करके बता रही हूँ. 360 इज नंबर ऑफ डेज. डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको कितना टाइम्स मिला? 18 टाइम्स. सो दिस विल बी 20. मतलब एक डेटर आपको 20 दिन के अंदर पैसा दे देगा. सिंस दिस आर डेज, तो जो भी आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? डेज में आएगा. सो एवरेज डेटर विल बी गिविंग यू द इन 20 डेज. कलेक्शन ड्यूरेशन पूछा है ना कि कितने टाइम में आप पैसा उनसे जो क्रेडिट सेल्स में दिया तो कितने टाइम में पैसा लोगे? तो 20 डेज में पैसा. नाउ द लास्ट वन इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो. ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है COGS प्लस ऑल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब रोज रोज वाले खर्चे. तो रोज रोज वाले खर्चे किधर मिलेंगे? P&L में. COGS हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है. कितना आया है COGS? 9,12,000. We already calculate in third step. 9,12,000. So here you will write down operating cost divide by sales into 100 is the formula. I'm just breaking down over here the numerator. तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस
COGS. अब आप लोग बोलोगे मैम एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्यों लिया? बिकॉज इफ यू सी इन योर P&L यू हैव अदर टू. यहाँ तक मैंने आपको बोला कि सारी ट्रेडिंग की आइटम्स है, करेक्ट? यहाँ से सारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम स्टार्ट हो रही है. सो योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज ऑल्सो योर operating expense. So while calculating this, both will be taken. $2,72,000 plus 2,40,000. अब COGS वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया विच इज 9,12,000. Tell me the total of numerator now. 14,24,000. अब कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ फॉर्मूला में प्लेस करना है. तो हमें न्यूमरेटर मिल गया है. डिनोमिनेटर योर सेल्स का अमाउंट वाज हाउ मच? 15,84,000 into 100. 89.90. Okay. And since it is in the hundred, so it will be expressed in the form of percentage. Any doubt? No.